Good. Yeah. Okay. Hello, good afternoon, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saath Guruvar 2.0 that we started on 10th April 2025 under the mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. And this is our lecture number 111. And as you all know, this is the first Thursday of the month. So the speaker we all know, none other than our beloved Guruji, Dr. Liaquat Amole sir. So I take this honor to welcome and introduce sir. So Dr. Liaquat Amole sir is most eminent and passionate homeopath from Nashik, Maharashtra. Sir has more than 31 years of vast experience of homeopathic practice, and sir has conducted more than 300 seminars and 250 webinars all over. Sir has conducted seminars on specific diseases like diabetes, cancer, infertility, skin, etc. Sir's motto is to convert 10,000 GPs towards homeopathy. And till now, Sir has been successful in converting more than 2,000 general practitioners towards homeopathy. If not, they are practicing 100% homeopathy, but along with general practice. Sir is pioneer of the group Ignited Minds by PHF, where more than 2,500 doctors are studying daily. And Sir has discovered an unique method that is MML, Mind Method by Dr. Liaquat. The focus of MML is to practice on mind method, and empathy is the mantra. Dr. Liaquat sir is master of gestures. He is one who has introduced gestures in homeopathy. Through Sir's keen observation and huge experience, he has found out many original gestures, and which is a blessing for all us homeopaths and to homeopathy also. Sir is an author of the book that is bestseller book Humanopathy, of which 20,000 copies have been sold already, and Sir is working on the second edition. And about today's topic, as we all know, Sir is talking about infertility. And in the last session, we studied the part one. So we are continuing the infertility session. So I request all of you to please, you can unmute and welcome Sir with a huge round of applause. Welcome, Sir. Over to you. Yes. Thank you, Veda. Thank you so much. And one more request to everyone, please keep your videos and audio on mute. Whenever you want to speak, you can just raise your hand and then you can speak. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Sorry for being late. Actually, I got a case emergency. So yeah, as always, we get, जब भी कुछ काम रहा तो पेशेंट आते ही है वो है that's a rule. Anyways, now let me share the screen. If you remember, we were talking about infertility uh, last time when we took lecture. Let me continue that this time. Okay. Mm, so infertility is never a single thing. Remember, it's never a single man's problem. Okay, it's not always the woman in infertility. Please remember. So you have to treat the man and the woman both. Please remember this. All right. It's injustice for the woman to be treated alone because it's illogical also. Okay. Am I audible? Am I Yes, audible? sir. Yeah. Yes, sir. All right. Yes, sir, very clear. So thank you. It's very illogical and same injustice also to the woman to brand her only as sterile or infertile. All right. So please remember, you have to treat both possibly, but of course, most of the times we treat the women and we do get the results. But still, it's always better to treat both. So the chances of a healthy baby being born is uh, you know becomes more and chances of congenital anomaly becomes lesser and less. Okay.
So we were talking about female infertility. If you remember, we spoke on the introduction. If you remember, focus on female infertility, rises cases of male infertility or also there. If you remember, the reason was I told you as the exogenous hormones we drink water from the water. I mean, these bottles, PET bottles, and this gives exogenous hormones, oxytocin. You get a lot of oxytocin, and the demand of the era for the guys to be a little more feminine. Mama's kids nowadays है ना, माँ के बच्चे हैं तो माँ दे लाडले ज्यादातर effeminate होते जा रहे हैं. दूसरा फीमेल डोमिनेंस बढ़ रहा है. ओके, डोमिनेंस एज इन female are coming out and they are becoming more outgoing now, so it's they're becoming more masculine also. That's why the problem of PCOS and hirsutism has risen to a great extent, a great extent. Okay, it's one of the, if you see, there are multiple infertility centers now in cities, in IVF and all. Okay, abhi insurance companies have started giving coverage on IVF also nowadays. Okay, so illness involves both physical and psychological impact. We know that PCOS, we spoke about female infertility, we spoke on PCOS last time, right? uh, we were there only, right? Hello, we finished PCOD, if you remember. Now, anybody who was there last lecture remembers that where were we? Fallopian tubal blockade we did not discuss, right? Hello. So Yes, fallopian sir. tubal blockade can be congenital, can be acquired also. If you remember, a celebrity, famous Aishwarya Rai ji also had, I think, she had suffered from tuberculosis. Okay, of uterus. I might have read it somewhere. Okay, and she was having fallopian tubal blockages. So we know tuberculosis is again self-denial, right? And tuberculosis, we all know, is sora over syphilis. Okay, so post tuberculosis or post infection blockages are very common. The adhesions form. So what is the remedy? That for post-infection blockage, there is a specific remedy for post-inflammation blockade of the fallopian tubes. Does anybody remember that? Post-inflammation blockade of the fallopian tubes. Hello? Any guess? Any guess that anybody? Hello? Can anyone guess? Post-inflammation blockade of the fallopian tubes. Hello? Hello? You can unmute and speak. Photo निकालो मैंने. Photo. है क्या इसमें? Hello? Anybody? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yeah. हाँ Does सर. anybody remember post-inflammation blockade? Does anybody know? Okay. So, see, when indicated remedy fails, simple, you go with something and then it fails. Then you go to the physical history, you ask, so metritis or anything, inflammation of the fallopian tubes due to any reason. Okay, write it down. Medorinum 1N. Start with Medorinum 1N. Okay, in that case, if you have given sepia or ignatia, whatever was the remedy was given, but still the fallopian tubes do not open, then one dose of Medorinum 1N. Okay, or maybe 3 doses every day, like for 3 consecutive days, give Medorinum 1N, 1 dose. OD for 3 days. Okay, that will solve many problems. Okay, and then see, the lady might get greenish discharge through uterus, or you can simply ask whether she had history of warts at the genitalia, whether she had greenish, yellowish green discharge.
That's a sign of gonorrhea, if you remember. But suppressed gonorrhea, okay, the remedy is Merovinum 1F. You will say, sir, you talk about mind method. So mind method is not treating only on mental symptoms. Please remember, mind method is to mind your business. Okay, one. Second thing I'll tell you about Merovinum mind. Okay, I go through Merovinum very simply. There is a beautiful rubric that we use in mind method very often. Does anybody remember what is the rubric of Merovinum that we treat very often in day-to-day practice, that we get in day-to-day practice? Does anybody remember? कोई बता सकता है? Hello? Anybody remember the rubric of Merovinum that we use mind method में खास करके? Hello? Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay, can I have some thumbs ups, please? Can I have some thumbs ups? So I'll see that people are awake. Just message me thumbs up. See, there's a beautiful rubric that we use in mind method, talking business. Do you believe that there is Merovinum in this? We use this rubric for bryonia, then we use it for Prostox, and then we use it for opium, phosphorus, right? Sometimes for cantharis also. Hello. But did anybody use this rubric for Merovinum, talking business? Hello? No. No, no. None. Oh, Now remember, in infertility cases, if the lady is anyways, talking to you, डॉक्टर साहब कितने दिन लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, ज्यादा खर्च तो नहीं आएगा, कितने दिन में लगना चाहिए, डॉक्टर साहब आपने 3 महीने बोला था अब तक नहीं पड़ा, डॉक्टर साहब इस बार फर्क पड़ना चाहिए, डॉक्टर साहब जल्द से जल्द फर्क पड़ना चाहिए, डॉक्टर साहब आई डोंट हैव मच टाइम, डॉक्टर साहब ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब इतना खर्चा हो रहा है देखिए ना, डॉक्टर साहब देखो हमने इतना खर्चा किया, वी हैव स्पेंट 3 lakhs, डॉक्टर साहब वी हैव स्पेंट 1 lakh, वी हैव स्पेंट 10,000, सर इन्वेस्टिगेशन में इतना खर्चा कर दिया. सो whenever they talk about money, whenever they're talking about फायदा नुकसान, that is talking business. Please think about Merovinum, first remedy, especially in infertility cases. Hello, okay, please remember this. Hmm? भाई ये तो बड़ा कॉमन सा सिनेरियो है ना, क्योंकि वो लोग सब तो मैं वही तो पढ़ा था, मतलब यही तो आप मिस कर जाते हो ना आप अजान. हम्म तो right. यही तो टॉकिंग बिजनेस है, यही तो मैं 100 डेज के कोर्स में पढ़ाया, आपने अगर ध्यान दिया हो. 100 डेज का को आपने कोर्स किया है क्या? 100 डेज में डॉक्टर लिया कर, उसके अंदर मैं किया ये है रूटीन पढ़ाया किया हूँ. है हाँ. या इसके अंदर मेडोनियम हम लोग बहुत कम यूज करते हैं. देखो आपको और एक क्लू देता हूँ, चलो, दो इट इज अ लेक्चर ऑफ फर्टिलिटी. केस ऑफ अस्थमा, केस ऑफ नी पेन, केस ऑफ लो बैक एक, केस ऑफ impotency. Okay, please remember, talking business, you should think about the remedy mechanism first. If the patient has rubric, if the patient has this tendency to talk about business, as in फायदा नुकसान, think about mechanism first. ठीक है? अगर मेल आके बोलता है डॉक्टर साहब एकदम बूढ़े इंसान की जैसा लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है बूढ़ा हो गया डॉक्टर साहब, हो जाएगा ना आपके पास डॉक्टर साहब, ठीक, कितना खर्च आएगा? बहुत पैसा खर्च कर लिया सर, वो वाइग्रा पे इस पे उस पे बहुत खर्चा कर लिया. गिव मेडिसिन. डिल्यूजन, क्या रूब्रिक बताए? डिल्यूजन, ओल्ड, फील्स ओल्ड, ही इज इन मेन, ऐसा एक रूब्रिक है. मैन ओल्ड आ गया है, कंप्लीट में है, इन मेन ऐसा रूब्रिक है. डिल्यूजन ओल्ड इन मेन. हाँ देखा, डिल्यूजन ओल्ड मैन आ गया, पुरानी इसमें है. इफ यू सी इट इन मेन, इट्स रूब्रिक ऑफ मेन. ओके, उसमें दिया हुआ है मेडम इज द रेमेडी इन दैट. ओके, मेन का मतलब समझा करो आप, हाँ? फिर अगेन प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज मेन, है ना, प्रणाम सर। मर्दों वाला.
ओल्ड सेंसेशन ऑफ और बीइंग में भी सेंसेशन मैन इन, देखो मेडिसिनम दिया है सर सिंथेसिस में। सिर्फ मेरोनियम है। ओल्ड सेंसेशन ऑफ बीइंग इन मैन, देखो कितना सिंपल है। और उसके साथ अगर टॉकिंग बिजनेस आ जाए तो खत्म, आपकी रेमेडी मेट्रोनम आउट। और फीमेल्स में भी अगर टॉकिंग बिजनेस आ रहा है तो प्लीज थिंक अबाउट दिस। मेहनाज आपका क्या कर रहे हो डॉक्टर मेहनाज, आप थोड़ा सा ना वो स्क्रिबल करना बंद करो बेटा। स्क्रीन को ज्यादा छेड़ो मत, वो स्क्रिबल हो रहा है आपके। ठीक है, इट इज डिस्टर्बिंग डॉक्टर मेहनाज। ओके, नाउ कमिंग बैक टू फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज का, बोलिए और कोई। व्हाट कैन बी द इन कंजेनाइटल tube blockage also got opened with us? What else can be the reason for fallopian tube blockage? ट्यूबरकुलोसिस के अंदर तो सेल्फ डिनाइल आएगा। सेल्फ डिनाइल जब आता है, ट्यूबरकुलोसिस का रीजन इज सेल्फ डिनाइल, है ना, सपरेशन, सेल्फ डिनाइल। टेल मी which are the remedies which are there for self denial? Hello, apart from the rubric self denial, एक डायरेक्ट रूब्रिक भी दिया है अपने रेपर्टरी में, सेल्फ डिनाइल, है ना। ओनली 3 रेमेडीज, एगरिकस स्पोडोफाइलम स्टिफिस एग्रिया, उसके अलावा भी है सेल्फ डिनाइल। कहां पर होता है सेल्फ डिनाइल, कोई बता सकता है? विच रेमेडीज आर पॉसिबल फॉर सेल्फ डिनाइल अपार्ट फ्रॉम दिस? कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन, बट कार्सिनोसिन तो मार्टियर में जाएगा ना। हम्म। कार्सिनोसिन में कैसा है ना, एक रूब्रिक है कार्सिनोसिन में, रिस्पॉन्सिव इंटरेस्ट विदाउट। कार्सिनोसिन रिपल्जन में नहीं जाता है, देखो, रिस्पॉन्सिव इंटरेस्ट विदाउट। तो डल्कामार और कार्सिनोसिन न चाहते हुए भी बच्चे देगा। इवन डल्का तो हेट्रेड फॉर हस्बैंड में मेरे पास में है, हेट्रेड ऑफ हस्बैंड बट स्टिल फर्टाइल, स्टिल दे गिव चाइल्ड विद द होप कि और एक बच्चा हो जाए तो शायद हस्बैंड सुधर जाए। एक दूसरी बात, दे रिस्पॉन्ड इवन इफ दे हेट द हस्बैंड, बट दे हैव दैट ना ड्यूटी, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो दे डू गिव बर्थ। ठीक है। मूड रिपल्सिव देखो, मूड रिपल्सिव में कार्सिनोसिन है क्या? है। डल का मारा है क्या? है। बराबर ना? तो सेल्फ डिनाइल अलग है, बोलो। सर थूजा। कैसे? तुझा तो अब्यूजिव टू हस्बैंड में है, सर पूरा राइस वर्थलेस। तो। हाँ, शी फील्स वर्थलेस ना। नो बट सेल्फ डिनाइल बेटा, ओके। यू अंडरस्टूड? सेल्फ डिनाइल हम्म। मतलब उसको ऐसा है कि वो खुद को डिनाई करेगी, उसके खुद के इंटरेस्ट को, उसके खुद के ईगो को, रादर। सेल्फ में मतलब क्या है? सबसे पहला क्या होता है, तुम्हारा ईगो होता है ना, उसको तुम डिनाई करोगे। हेलो, समझ रहे हो? तुम यस सर। ईगो को डिनाई करोगे, अंडरस्टूड ना? मूड सर रिपल्सिव में सर काली सर। कार्सिनोसिन है। हाँ है ना, देखा ना, लड़का वाला है। है सर। बट वो रिस्पॉन्सिव इंटरेस्ट विदाउट में भी है ना, हाँ सर वो कार्सिनोसिन अपने है। मूड को सेटल कर देते। पेशेंस में भी एक तलका मारा है, तो सबर कर लेंगे और होने देते, मतलब वो बॉडी तक नहीं आने देते उनका। तो आप बहुत रेयरली यू विल सी तलका मारा इन दिस थिंग, infertility, very rare. Carcinosin also very rare, very rare. सर कार्सिनोसिन काली जहां पर सर। आपको लगे, देखो और एक चीज बताता हूँ, जहां पर आपको लग रहा है कि कार्सिनोसिन है, इनफर्टिलिटी में बहुत हिस्ट्री ऑफ अब्यूज है, फीमेल इनफर्टाइल है और बच्चा नहीं हो रहा है, कार्सिनोसिन नॉट वर्किंग वेल, यू गिव फॉलिक्यूलिन। ओके, देखो एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज, इफ यू टेक सी द rubric elements from abused, देखो
अभी उसमें क्या है? फॉलिक्यूलिनम भी है, सेक्सुअल अब्यूज में भी फॉलिक्यूलिनम है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन में भी फॉलिक्यूलिनम है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, लॉन्ग टाइम फॉर, देखो फॉलिक्यूलिनम है। तो ये हमको क्या होता है ना, दिस इज द आर्ट पार्ट ऑफ होम्योपैथी, प्लीज रिमेम्बर, दिस इज द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। ओके, यहां पर हमने थोड़ा सा है ना आर्टिस्टिकली सोचना है कि कहाँ जा रहा है ये। यहां पर एम्पैथी कम्स इनटू प्ले। ओके, इसलिए मैं बोलता ना कि होम्योपैथी फॉर मी इज इक्वल टू एम्पैथी। तो एनालिटिकल माइंड आपका रखना है बाद में इवेल्युएट करते वक्त, लेकिन आप एम्पैथाइज करो और फिर सोचो क्या कार्सिनोसिन इनफर्टाइल होगा? कार्सिनोसिन तो मार्टियर में है, अपनी जान देगा। आप क्या करते हो, माँ बच्चे में क्या करती है, जान डालती है ना। हेलो, उसका खून देती है ना उसको। हेलो, उसका यस सर। खून, उसका फ्लैश देती है ना। हेलो। यस सर। हाँ, तो मार्टियर है, तो मार्टियर तो वही तो देता है। मार्टियर क्या करता है, अपना एक एक कर्ण, कर्ण को याद रखो ना। महाभारत का जो कर्ण है मार्टियर ना, कुर्बान। भगत सिंह जी को याद रखो, कुर्बानी देते ना, मार्टियर। हेलो, तुझ पे जान कुर्बान, वो मार्टियर है ना। हेलो, हालांकि भगत सिंह जी कॉस्टिकन थे, वो नहीं, परंतु ये चीज को आप याद रखिए कि वो जज्बा कि हम कुर्बान कर देंगे अपने आप, है ना। तो वो कार्सिनोसिन वो होता है कि जिसके अंदर वो अब जा रहा है, मर रहा है लेडी, पर बच्चे हो रहे हैं उसको। सेपिया कार्सिनोसिन ये ऐसे है ना, ये देते रहते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग कार्सिनोसिन कहाँ ब्रेक होगा, वो अलग चीज है। आप वो, मेरा एक इनफर्टिलिटी का कोर्स है, डॉक्टर प्रणीता बताएंगे, उसके अंदर मैं आपको एक्चुअल केसेस बताऊंगा, एक्चुअल जिसके अंदर आप देखोगे लेडी को सामने, और फिर वहां पर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पर उतना फ्रीडम कम हो जाता है मेरे पास में। आपको एक बार डॉक्टर प्रणीता से जरूर आप संपर्क करें अगर आपको है उसमें दिलचस्पी। ठीक है, एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू फैलोपियन ट्यूब, कमिंग बैक टू सेल्फ डिनायल, टेल मी व्हिच आर द रेमेडीज जो सेल्फ डिनायल करेंगे? हेलो, कार्सिनोसिन सेल्फ डिनाई करेगा, बराबर है, लेकिन कार्सिनोसिन प्राइमरी इंफर्टिलिटी में बहुत कम है, सेकेंडरी इंफर्टिलिटी में शायद आ सकता है। प्राइमरी इंफर्टिलिटी में कार्सिनोसिन विल कम वेरी रेयर। कौन सी केसेस में आएगा, दैट आई कैन, दैट यू हैव टू, that I cannot explain. You will have to go to the course, you will maybe understand. Okay. इग्नेशिया एक है जो अपने आप को सप्रेस करके आएगी। हेलो, समझ लो, ये मॉरल वाले जितने भी है ना, नक्स स्वामी का भी जा सकता है सेल्फ डिनाइल में। क्यों? क्योंकि उसको माँ बाप का नाम कमाना है। हेलो, सेल्फ है ना, वो क्या है, एम्बिशन फॉर फेम, कि मुझे मेरे माँ बाप का नाम कमाना है, माँ बाप का नाम मैं कमाऊंगी ससुराल जाकर। देखो ये लोग भी सेल्फ डिनाइल में जाते हैं। एलुमिना, ऑरेंज सेल्फ, लैक्टिसिस, टैक्सोमिका, स्टेफिसिग्रिया, ये लोग जाएंगे सेमिनार में। और इग्निशिया, प्लीज रिमेंबर, आउट ऑफ मॉरल, सेंसिटिव टू मॉरल्स। इसके कारण देखो, अभी सेंसिटिव टू मॉरल्स एंड एम्बिशन फॉर फेम अगर आप डालोगे तो उसके अंदर आपको नक्स आएगा। मतलब माँ बाप का नाम कमाना है, खराब नहीं होने देना। नक्स और स्टैप, नाम के लिए, माँ बाप का नाम खराब नहीं हो, खुद का नाम खराब नहीं हो, इसके लिए ये करेंगे। ठीक है, और ये मॉरल वाले क्या है कि नहीं पति है, नहीं मेरा धर्म है, पत्नी धर्म है, काफी अभी उसमें मेरा पत्नी धर्म है, मुझे निभाना है। हेलो, हिपार्शल का भी वही है, पत्नी धर्म है, फैमिली की चिंता है, मेरे फैमिली के लिए मेरा कुछ लगता है, तो शी विल गो फॉर सेल्फ डिनायल। काली कार भी जाएगा, कंफर्मिस्ट है, वो भी जाएगा इसमें। नेत्र पल्सरला भी जाती है, बहुत जाती है पल्सरला भी, पल्सरला भी बहुत जाती है सेल्फ डिनायल में। ये लोग बहुत सेल्फ डिनायल में जाते हैं, तभी तो पल्सरला को वेरिकोज वेन्स होते हैं ना, सेल्फ डिनायल से वेरिकोज वेन्स भी होते हैं।
समझ रहे हो? तो ये लोग जो है ना, ये जाएंगे सेल्फ डिनाइल पर। उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन जाएगा, आपको बताता हूँ, इग्नेशिया, कॉमनेस्ट इग्नेशिया, डल का मारा। बट डल का मारा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आएगा, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में कम आएगा बहुत। ठीक है। डल का मारा का रिएक्शन भले वो एकदम चिल्लम चिल्ली गुस्सा पित्ती ये भी जा सकता है। जब जेलेसी रहेगी उसके बाद में उसकी सास रहेंगी, अगर डोमिनेट कर रही तो डलका वाले को प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि डलका का एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा एक रूब्रिक अगर आपने यूज किया है नहीं पता, जेलेसी वुमन इन वुमन, गर्ल्स इन है। जेलेसी चिल्ड्रन बिटवीन गर्ल्स, देखो गर्ल्स, जेलेसी बिटवीन गर्ल्स, समझ रहे हो ना? ये बहुत बड़ा पंगा रहता है। मतलब मान लो दो बहनों ने शादी की है एक ही घर में, या फिर वो है कम उम्र की है, उनके अंदर की अभी भी गर्लिशनेस है, तो वहां पे पंगे बहुत आते हैं नक्स के। क्योंकि उसके अंदर की लड़की ही नहीं जाती है। नक्स का प्रॉब्लम क्या है ना, नक्स इज निग्लेक्टेड बाय बोथ। एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड, फादर एंड मदर बाय बोथ। देख लो, फादर बाय अगेन नक्स ओमिका, मदर बाय अगेन नक्स ओमिका। तो नक्स का क्या होता है ना, उसके अंदर की लड़की जिंदा रहती है बहुत। देखो नाइट्रोमोर और नक्स ओमिका, ये दोनों बोथ आर देयर इन निग्लेक्टेड बाय फादर एंड मदर बोथ। ये दोनों को माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिला होता। उनको जो चाहे, उनको ऐसा लगता है कि वो निग्लेक्टेड, उनको माँ और बाप का प्यार नहीं मिला होता। अपन माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो अपने दिमाग में मैग आ जाता है, नहीं। मैग का ऑर्फन वाला अलग है। माँ और बाप का प्यार नहीं मिलने वाले ये दो लोग हैं, नेट्रोमोर और नक्सोमिका। इसलिए नक्सोमिका में जेलसी बिटवीन गर्ल्स आएगी, क्योंकि उसके अंदर की लड़की अभी भी जिंदा है। जैसे कार्सिनोसिन का बच्चा हमेशा रहता है जिंदा आखिर तक, क्योंकि उसको बचपन नहीं मिला है। रॉन्ग सफर्ड इन चिल्ड्रन है ना, कार्सिनोसिन क्या है ना, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड इन चिल्ड्रन। देखो, रॉन्ग सफर्ड इन चिल्ड्रन, देखो ये तीन लोगों में का बच्चा हमेशा रहेगा। बराइटा, कार्सिनोसिन, नाजा। अब समझ में आया बराइटा कब क्यों बच्चा रहता है आखिर तक? हेलो, नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाई बराइटा इज चाइल्ड थ्रू आउट, इज बिकॉज रॉन्ग सफर्ड इन Yes. चिल्ड्रन। बचपन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। कार्सिनोसिन में भी वही है, नाजा में भी वही रहेगा। इसके कारण इनके अंदर का बच्चा आखिर तक रहेगा। ठीक है। और नक्सोमिका में एक लड़की इसलिए रहेगी बिकॉज शी इज निग्लेक्टेड बाय बोथ द पेरेंट्स, मदर एंड द फादर बोथ। नक्सोमिका एंड नेट्रोमोर। नेट्रोमोर इसीलिए तो एक बहुत अच्छा रूप है, शेमलेस इन बेड। शेमलेस इन बेड, बेड मतलब क्या? बिस्तर में आप बच्चे हो जाते ना, ये नेट्रोमोर को एकदम कंफर्टेबल कर दो आप, एकदम कंफर्टेबल, शी विल बी एब्सोल्युटली शेमलेस। मतलब वो ऐसी ऐसी बात पेशेंट आपसे करता है, जैसे मेरा नेचर है, मैं बेटा करता हूँ ये करता हूँ, तो आई मुझे अच्छा लगता है, मतलब जान प्यार करना। तो मैं ऐसा बच्चों की जैसा भी करता हूँ, किसी को छोटी बहन जैसा करता हूँ। तो वो दे विल टॉक टू यू इन, क्या क्या नहीं बात करेंगे नेटवर्क आपके पास में। आप कभी कभी आपको खुद को शर्म आती है, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं छोटी बहन है, दोस्त है, तो माशाल्लाह से। और वो इतना, मतलब इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड शी माइट टॉक अबाउट हर प्राइवेट लाइफ ऑल्सो, बिकॉज इट इज बैड। तो Natromore is searching for bad. Nakswamika is searching for Shanti and respect. हेलो, समझ रहे हो? नक्सवामिका को रिस्पेक्ट चाहिए, शांति चाहिए। और नेट्रोमोर को क्या चाहिए? बैड चाहिए, कंफर्ट चाहिए, जहां पर उसको कंफर्ट मिले, सिक्योरिटी मिले। अंडरस्टूड? हेलो। एनीवेज, नाउ सेल्फ डिनायल। अब इग्नेशिया कैसे आता है ना सेल्फ डिनायल के अंदर? वही ना कि हस्बैंड के पास जा रही, सेपरेशन है, ये है, सहन कर रही है ना, उसमें क्या है? bears outrage even without complaining, वो है ना इंग्लिश में वो है ना, क्या है वो? complain does not bears outrage without complaining। क्या ग्रेफाइट रूबरी है वो? रहता है। हाँ, ग्रेफाइट। नहीं नहीं नहीं, क्या रूबरी है वो? Mildness है। माइल्डनेस, यस। bears suffering even outrage without complaining। देखो कितना सेल्फ डिनायल है।
बेयर सफरिंग्स, इवन आउटरेज विदाउट आउटरेज मतलब क्या, रेप ना, सॉर्ट ऑफ, इतना इग्निशन चाहिए। ठीक है, राइट। सेल्फ डिनाइल थोड़ा समझ में आया फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको? चलो, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेड के अंदर, इफ द रेमेडी इज नॉट नोजोड, then go for 6 potency BD for a week or something. Okay? If it is ignatia, if it is pulsatilla, whatever, then 6 BD। और ignatia का प्रॉब्लम आएगा, देवरानी को बच्चा हो गया, इसको नहीं हो रहा है, उसके अंदर आपको ignatia पकड़ में आ जाती है। ठीक है, चलो, यूट्राइन abnormalities we all know, small uterus, बाइकॉर्नेट, बाइकॉर्नेट में भी होता है, सेप्टेट यूट्रस में भी होता है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। Endometriosis. What I want to talk about is endometriosis more. Now tell me, now tell me, what is the metaphysics of endometriosis and what could be the possible rubrics for that? Hello. What is endometriosis, guys? Hello. What is endometriosis, by the way? Anybody? Hello. What is endometriosis? Hello. Endometriosis is lining of the uterus outside the uterus. Very good. It- And what does endometrium do? वही बाद में जाके नरिशमेंट देता है इफ द लेडी कंसीव्स, और वहां से ही प्लेसेंटा एंड ऑल दैट, वो उसके ऊपर डिपेंड उसी के करता अंदर इम्प्लांट होता है, बराबर है? है। हाँ हाँ, इसी के अंदर इम्प्लांट होता इम्प्लांट होता है, मतलब क्या है वो? देखो, मैं बताया ना, सेल्फ डिनायल और ट्रॉमा, देखो, लिंक टू अब्यूज और ट्यूबरकुलोसिस, बराबर बोला ना ये मैंने? हाँ, बोलिए। ओवर ग्रोथ ड्यू टू ओवर नर्चरिंग, बराबर ना? देखो क्या क्या रूब्रिक से, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड। हेलो, मतलब इतना नर्च ओवर नर्चरिंग है ना, कि कहाँ तक नर्चर कर रहा है यूट्रस। हेलो, कहाँ जा रहा है यूट्रस, मतलब एंडोमेट्रियम कहाँ जा रहा है? यूट्रस के बाहर जा रहा है, वजाना में जा रहा है। हेलो, आर यू विथ मी गाइस? है। यस। मतलब कहाँ तक जा रहा है? जहां पे जरूरत नहीं वहां तक जा रहा है, इतना फीड। जमीन क्या करती है, आपको न्यूट्रिशन देती है, कि इतना न्यूट्रिशन दे रही कि कहाँ तक, कि कितना दूर। वो होती ना माए की बच्चों को छोड़ती नहीं है, मतलब बुढ़ापे तक होता है ना, कि बच्चों के भी धोएंगे, उनके बच्चों के भी धोएंगे, पोतों के पड़पोतों के, उनके भी वो करेंगे, नाती नवासी सबका, बराबर ना? तो ये कहाँ से आता है? मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड की रेमेडीज देखो, हम लोग देखते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ पता है यहाँ पर आपको? एक्चुअली ये सारा मैं केसेस के जरिए बता सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं बोला ना कि बहुत, बिकॉज इवन माई पेशेंट्स विल बी ऑल्सो वॉचिंग, तो आई डोंट वांट थिंग्स टू बिकम पब्लिक, इसके लिए मैं वो आपको जो बोला कोर्स का रीजन इज दिस, दैट सो दैट यू कैन सी द एक्चुअल केस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कहाँ मैटरनल इंस्टिंक्ट कैसे पकड़ा जाए पेशेंट के अंदर। इसमें देखो अगेन, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेट देखो, अराइट, आर्सेनिक, बराइटा, कैलकेरिया, कार्सिनोसिन, कॉक्यूलस, लैक डिफ्लोरेटन, लैक मैटरना, सेपिया। लेकिन क्या होता है ना, ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है लोग, क्योंकि एग्जैगरेटेड है, समझ लो, ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल होता है तो पैथोलॉजी देता है। हेलो, अब ये आप बताओ कि इनफर्टाइल के अंदर ये कैसे आएगा? हाउ विल यू कैच दिस इनफर्टाइल?
हेलो, मतलब कोई बता सकता है मैटरलिस्टिक एग्जैगरेटेड इन इनफर्टाइल लेडी? हेलो। लाइक वो दूसरों के बच्चों के लिए बहुत दिखाएगी एक्स्ट्रा केयर। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको दिखाएगी? हस्बैंड को भी बच्चे की तरह रखेगी, हस्बैंड। बच्चे की तरह ध्यान देंगी, और छोटे भाई बहनों का भी उस तरीके से बिहेव करेगी। हेलो, वेरी मदरली बिहेवियर शी विल हैव, शी विल टॉक मतलब वेरी सर, मेच्योर। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी हो सकता है ये। सेकेंडरी में तो आएगा, पर वी आर टॉकिंग अबाउट आएगा। प्राइमरी, सपोजिंग प्राइमरी में आ रहा है। अच्छा। सेकेंडरी में तो आपको आसान है ना कि बच्चे को एकदम बहुत ज्यादा ये करेंगी, समझ रहे हो ना, कि बच्चे को एकदम ही उसका सब करेगी, एकदम ही, मतलब उसके नाखून काटने से लेकर तो सब करेंगी, समझ रहे हो। बट प्राइमरी में इसको कैसे पकड़ा जाए, है ना? क्या क्या बता रहे थे हम लोग? हस्बैंड को, उसके छोटे भाई बहनों को, और बच्चे का पहले ही सब करेंगी। और एक बहुत इसका क्लासी है, कोई बता सकता है? वी हैव 5 more minutes। या टेल मी, कोई और बता सकता है इसका? एकदम क्लासी एक आएगा कि दे वांट टू हैव किड्स वेरी अर्ली, मतलब शादी हो गई 1 साल नहीं हुआ कि बच्चे के लिए आएंगे आपके पास, दवाई के लिए आएंगे। समझ रहे हो? 1 moment, I have a... हेलो, बोलो, कहाँ था मैं? व्हाट वाज आई टेलिंग? जल्दी बच्चे चाहिए उसको। हाँ, अब इसको एक कंपटीशन में और एक रूब्रिक है, क्या है? चिल्ड्रन वांट टू बिगेट, है ना? रूब्रिक है ना, चिल्ड्रन वांट टू बिगेट चिल्ड्रन, डिजायर टू, बट दिस इज डिजायर, है ना? कि वो, इनको ज्यादा बच्चे चाहिए होते हैं बहुत, तब ये रूब्रिक अपने को आएगा। ये इनफर्टिलिटी में भी ये रूब्रिक यूज होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम। इसके थ्रू अपन इनफर्टिलिटी में नहीं जा सकते, प्लीज रिमेम्बर। ये रूब्रिक के थ्रू इनफर्टिलिटी में जाना बहुत मुश्किल है। हम्म? इसमें से एंट्री नहीं करना, नहीं तो फिर तो आप तो फंस जाओगे, पूरी बुरी तरह फंस जाओगे इसमें, ठीक है। और कोई मैटरलिस्टिक एग्जैगरेटेड का और कोई बता सकता है? वन मोर एग्जांपल ऑफ दैट, कम ऑन, सिंपल। चलो, और कोई सोचो, लॉजिकली कहाँ जाएगा मैटरल इंस्टिंक्ट एग्जैक्टेड, और कहाँ जाएगा? What else can be the presentation of maternal instinct exactly? Come on. Hello. सर सास ससुर की या माँ बाप की ज्यादा केयर करेगी, ज्यादा उनको ध्यान देगी ऐसे। वो तो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट रहेगा, रिलेटिव वो भी है। अरे, बच्चों के लिए पहले ही इंश्योरेंस करके रखेंगे, समझ रहे हो? अच्छा। बच्चों के लिए पहले ही प्रॉपर्टी, भले देखो वो पॉलिटिशियन लोगों का छोड़ दो, वो तो ग्रीड हो जाता है, वो तो इतना, वो बच्चों के लिए थोड़ी कमाते हैं, वो तो कमाते हैं पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा है, हमारे जैसे सामान्य जो, है ना, जिनकी प्रॉपर्टी 2-4 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, आज के तारीख में तो 2-4 करोड़ को कुछ वैल्यू भी नहीं है। उतने का तो मुंबई में फ्लैट भी नहीं मिलेगा 3 BHK, है ना? उतने इसमें भी, लेकिन बच्चों के लिए वो पहले बच्चों की सोचेगी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नहीं बाबा, मेरे बच्चों को लेगा, मेरे बच्चों को लेगा, समझ रहे हो? और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कौन सा पता है? जैसे मैं, किसने पूछा ना, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तो वही होता है, मैं बोला ना कि नाखून से लेकर एवरीथिंग दे विल डू बच्चे को। पापा इधर मत जा, उधर मत जा, यही माएँ वही होती जो बच्चे को ज्यादा खेलने नहीं देती है, बहुत ज्यादा बच्चे का तेल लगा के लेकर के सब कुछ, पीछे पड़ पड़ के माएँ जो तेल लगाती बच्चे को, समझ रहे हो ना, खाना खिलाती है। लिटरली आई हैव सीन ना, मतलब मैटरलिस्टिक एग्जैगरेटेड वालों के बच्चे कैलकुलेट फंस जाते हैं ज्यादातर, पकड़ में खाते हैं, आराम से खाते हैं, समझ रहे हो ना? कैलकुलेट फंस हो जाए उनके बच्चे का आता। ओके, और
let's go to the next slide now. Cares full of others about, again, है ना? IPR क्या है? Let us see now. IPR of infertility. Please remember, emotional why behind wanting a child is a must. You have to ask, what do they want? Why do they want to have a child? Why? कई बार आपको ये बोलेंगे, अभी जैसे मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जेठानी हूँ और देवरानी को बच्चा, अभी शादी हो गई उसको, उसके पहले मुझे बच्चा चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि उसको अगर हो गया तो फिर इसकी पोजीशन नीचे जाएगी. इवन द हस्बैंड माइट से दैट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज पावर लव. हेलो, अंडरस्टूड? हेलो, आर यू विथ मी? हाँ सर. दिस यस इज सर, पावर यस. लव ऑफ. समझ गए ना कि मेरी पोजीशन जाए ना ही जाना चाहिए. दिस इज पावर लव ऑफ. क्यों चाहिए? एक बच्चा तो चाहिए ना डॉक्टर साहब, उसके सिवा कैसे फैमिली कैसे कंप्लीट होती है? ये क्या है? दिस इज डिलीजन पुअर. फैमिली इनकम्प्लीट है ना, दे आर शॉर्ट ऑफ. हेलो, दिस इज वेरी लाइकली टू बी डिलीजन पुअर, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड. दो बच्चे चाहिए. कई बार लोग आएंगे, एक हो गया सर, अभी एक लड़की, मुझे एक लड़का चाहिए. अगेन दिस इज डिलीजन पुअर, फियर पॉवर्टी. डॉक्टर साहब इसको सहारा चाहिए ना, अभी बेटे को, बेटा है सर, मुझे और एक चाहिए सर. दिस इज डिलीजन पुअर, कि इतना, अरे उसको सहारा क्यों बच्चे को? अरे वो बच्चा है, वो खुद करेगा. मतलब इनको इंडिपेंडेंस का है ही नहीं, क्यों अकेला रह सकता? नहीं नहीं, उसको चाहिए ना सहारा से. कोई लोग आएंगे, डॉक्टर साहब हम अकेले थे, है ना? क्या बोलते हो? हम अकेले थे, मेरा हस्बैंड अकेला है. आपको लेक्चर लेना है क्या? किसने वीडियो ऑन किया है? आपको लेक्चर लेना है? हाँ, ले लो. कुछ लिए बहुत लेक्चर लेने में, बंद कर दो. ओके, कहाँ था मैं? हाँ, मेरा हस्बैंड अकेला है सर, तो मेरे को एक बेटी है, एक बेटा चाहिए. ये क्या है? व्हाट इज दिस? मेरा हस्बैंड अकेला है, बेटा है ना. जैसे मेरे पास आते हैं, उनको बेटा भी चाहिए होता है, उसके लिए भी लोग तुम्हारे पास आएंगे. बेटी चाहिए उसके लिए भी आएंगे, वो कम होते हैं, लेकिन बेटा चाहिए के लिए भी आते हैं लोग. इनसिक्योरिटी. हाँ, इनसिक्योरिटी मेंटल तो है, और क्या लेकिन. सर डिल्यूजन पुअर ही है ये। और उसके अलावा सपोर्ट, सर सपोर्ट डिजायर। सपोर्ट इज वेरी सोशल स्मॉल. पोजीशन है सर, सोशल बेटा चाहिए ना भाई. सोशल पोजीशन चाहिए। और देखो, सोशल पोजीशन, कंसर्न अबाउट का मतलब क्या होता है ना? कंसर्न अबाउट मतलब कि उसकी कोई पोजीशन होनी चाहिए ना बेटा. घर का सोशल पोजीशन, चिराग चाहिए, घर का चिराग, नेक्स्ट घर का जनरेशन चिराग बढ़ाने के लिए। चाहिए. तो इसको क्या लोगे फिर आप? बुढ़ापे का सहारा बोला तो फिर डिल्यूजन पुअर, अगेन एंजाइटी, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंड डिल्यूजन पुअर कि बाबा बुढ़ापे में हमको कौन सहारा देंगे, हम पॉवर्टी में जाएंगे. मतलब इतना फियर पॉवर्टी उनमें आगे की, कि कौन हमको ध्यान देगा. लेकिन घर का चिराग ये कहाँ से आया है? प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल. दिस इज प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल. अंडरस्टूड? हेलो. यस सर. हाँ सर. हाँ. अब देखो, साइलेंट ग्रीफ भी आता है बहुत ज्यादा. ये है सर, अब किसको बताएं? एनवी भी आता है इसमें, क्योंकि उसको है, मुझे नहीं. सर देखो ना, मेरी मेरे साथ की सारी लड़कियों को हो गए सर, मुझे नहीं है. ये क्या है? ये एनवी है ना. आपको हसद हो रही है, आपको किसी की हेवा बट है ना तुम्हारा, रेचेडनेस, कि सर मैं क्या कैसे जाऊं लोगों में, कैसे मुंह दिखाऊं सर. सब दया करते हैं, कह रहे अब तक बच्चा नहीं हुआ है. रेचेड अंदर से ऐसा दयनीय लगता है ना कि बच्चा नहीं. सब बोलते हैं अरे हाँ इसको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है. ये एक अंदर से रेचेड फीलिंग भी आता है. अगेन सोशल प्रेसिंग है ना, और एम्बिशन डिसीव. क्या है ये? कि सर मैं चाहती हूँ, मैं चाहती थी सर कि 22 में मेरे को बच्चा हो जाए, फिर मैं उसके बाद में 25 25 3 साल का बच्चा हो जाएगा, 26 में फिर मैं जॉब कर लूंगी. इसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ. ये एम्बिशन खत्म ना, आपकी एम्बिशन डिसीव हो रही है. आपकी एक एम्बिशन थी, वो नहीं मिली.
एम्बिशन ने आपको धोखा दे दिया। हेलो, तो यहाँ पर एम्बिशन डिसीव्ड एक रूब्रिक आता है। आर यू विथ मी गाइस? या नाउ Yes, कल्चरल एंड sir. सोशल प्रेशर्स भी होती है। इनफर्टिलिटी एज अ सोशल बर्डन है, सो दे अवॉइड इवेंट्स, पीपल अवॉइड गोइंग टू इवेंट्स। उसके अंदर क्या क्या था, पल्सर लाइक क्या था, ये सब पूछते रहते हैं। तो डिलीजन पीपल, What? नॉइज, पीपल आर मेकिंग नॉइज। दूसरा स्टेफी सेग्रे आता है, हाइडिंग हिमसेल्फ। नेचुबूर आता है, ये लोग भी जाना चाहते हैं। देन दे अवॉइड गोइंग टू द पब्लिक मीटिंग्स। उसके अंदर एक है, लुक्ड एट कैन नॉट बेयर टू बी लुक्ड एट। लोग देखते हैं ना, उनके पास में देख रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना, बच्चा नहीं है। तो लुक्ड एट कैन नॉट बेयर टू बी लुक्ड एट, मतलब उसकी कंडीशन को लोग ना देखें, उसके बारे में लोग बात करेंगे। तो टॉकिंग ऑफ अदर्स अबाउट हर एग्रीवेट्स, ऐसा एक रूब्रिक है। टॉकिंग अबाउट हर अदर्स ऑफ एग्रीवेट, ऐसा एक रूब्रिक है। डिलीजन नॉइज पीपल मेक, आपने देखा पल्सर। finances and concerns of nutrition is one more thing. Non nurturing due to financial instability, सेपिया आता है उसके अंदर। एक मेरे पास में केस थी कि बच्चा सर, देखो नक्स एंड सेपिया, बच्चा सर पेट में गिरते के साथ खर्चा मांगता है, ऐसा बोलते हैं लोग। बच्चा पेट में गिरते के साथ खर्चा मांगता है, उसको वहां से दवा गोली शुरू हो जाती है। तो सेपिया नक्स उसके अंदर आती है। रिमेंबर, टू समराइज, infertility is a multi-dimensional thing, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, उसके अंदर। ये तो ठीक है, अपना मेडिकल साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। की रेमेडीज आर स्टेफिसेग्रिया, अमोनियम कार्ब। अगेन अमोनियम कार्ब इज a remedy which has again denial of womanhood। उसमें एक रूब्रिक है ना, envy and hatred, envy plus hatred, they hate men but still and they want to be like men। देखो एक रूब्रिक है, hatred of men, क्या है वो, envy and hatred। देखो अमोनियम कार्ब, that comes very much। ये लोग भी आएंगे देखो, envy and hate में, मतलब उनको वैसा भी होना होता है जिसको वो हेट करते हैं। तो नेट्रोमूर तभी तो दुश्मन से प्यार हो जाता है नेट्रोमूर को, होता है ना उसमें, क्या है, लव विद, लव आउट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसीलिए तो नेट्रोमूर उधर जाती है, क्योंकि रॉन्ग हेट पर्सन। करती है। हेट उसको करती है जिसके ऐसा उसको होना होता है। जो पल्सर लागा तो खैर सॉलिड है जवाब। पल्सर तो मैं कल मैं बताया केस के बाद, बाप केस के बाद, लाइक अमोनियम का, नेट्रोमूर, नक्सोमिका we saw, सेपिया, पल्सर, सल्फर we saw। Okay, thank you very much. Any questions? I'll take questions now. I'll take questions for 5 minutes max. Any questions? There is a lot to talk about infertility. This platform is very limited. I have limitations because it's a very private topic that we talk. Okay, so I have great limitation. Please understand. इसके लिए मैं बहुत चीजों के जवाब भी नहीं दे पाता हूँ यहाँ पर। Seriously, if you're really interested, I have a course. I'm not talking about I'm not talking for the course, but I want you all to really deal with infertility, because other pathies they loot, literally loot, as in, I'm sorry because we are doctors, we cannot say that. Loot is a wrong word, but they charge. Ooh, lala. You cannot believe the charges of. There's a package of 1 lakh, 2 lakhs, and 3 lakhs, and 5 lakhs, and whatnot. Delivery may be normal delivery, cost it 25-30,000 minimum। मेडिकल स्टोर का 10-15 हजार अलग जाता है आपके। एएनसी में भी इतना खर्चा आता है। वी बाय होम्योपैथी वी कैन रियली ट्रीट देम वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी मिनिमम। मतलब इवन ड्यूरिंग डिलीवरी यू गिव द रेमेडी एंड द लेडी कैन डिलीवर इन हाफ एन आवर, 1 आवर। ओके, मैंने कई जगह पर सीजरियन सेक्शन रुकाए हुए हैं, इसीलिए जाके खड़ा रहता हूँ, तो डॉक्टर साहब जस्ट गिव मी 1 आवर। वो 10-10 मिनट से अपनी दवाई दो एंड ठक, बेबी कम्स आउट। Recently, this happened with my Bhanji also. They had prepared for this thing. They called
anesthetist also, and I gave a remedy every 10 minutes. And by not in third dose पे तो the pain she took was great and drop से baby, you know, you know, head engage हो गया उसका लेके नीचे. फिर बात का जो जोर का cry आया, and then he heard the cry of the child. So I mean, it was not in 20, 30 minutes. First was 0, 10, 20. 20, 25 minutes, 20 minutes में तो she delivered. Anesthetist को फीस दे दी हमने, बोला जा भाई, thank you. ठीक है. Yes. Any questions? हेलो सर. मुझे सर एक चीज है, जैसे अगर मिस कैरेजेस हो बहुत ज्यादा, Yes, कंसेप्शन तो Chinu. होता है बट उसमें मिस कैरेजेस होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, पहले ही हो जाता है मिस कैरेज, जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में या एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम जी. उस केस में क्या लेंगे सर? तो उसमें हमको देखना है मेन तो क्या रीजन है कि शी इज नॉट होल्डिंग द चाइल्ड. ओके, वन सेकंड. I think I had explained the case last lecture. Infertility. There was a lady who had miscarriage in second trimester. Then it started reducing. She would abort first trimester only. जैसे मिस हो गया उसका, 4 abortions की हिस्ट्री लेकर आई थी वो लेडी. And the thing was, the husband was not working. Husband did not have very secure job. Okay. So due to this, the lady was like delusion poor, fear poverty, fear starvation, anxiety children. These are the 4 rubrics I took. And I gave her Sapia, and then she came with, next time she came as a pregnant lady, and throughout she took the treatment and delivered a very healthy baby. Okay, so you have to find out the reason. What is the insecurity that the lady is not able to hold on to the child for herself? Yes, very fast. Okay, fast, beta. So the reason is you have to try to find out what is the reason behind, what is the insecurity that the lady has. Okay, Chinu, try to यस find सर, out that. थैंक यू. Okay. भाई एक चीज पूछनी है. पीसीओडी का केस है और उसको मैंने कार्सिनोसिन दी थी, उसका सेमेलम निकाल के. उसने बहुत अच्छा उसका स्पॉटिंग कवर कर लिया. उसके पीरियड्स भी थोड़े रेगुलर हो गए, बट बीच में ना वो स्टॉप नहीं हो रहा था. मतलब इनिशियली बेटर होके फिर मैंने सोशेबिलिटी लेके उसको पोडो दिया. पोडो से उससे ना उसका बिल्कुल स्टॉप हो गई ब्लीडिंग, और उसके बाद अब प्रॉपर टाइम पर आई. पर टाइम पर तो आई, लेकिन अब फिर से वो स्पॉटिंग पर ही चल रही है. तो मुझे यहाँ पे पोटेंसी का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड नाउ शी वांट्स टू कंसीव आल्सो. तो दोनों ही चीजें हैं. फर्स्ट शी केम फॉर द पीसीओडी ओनली, और उसके बाद अब शी सेड कि अब मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई उसकी Beta, स्पॉटिंग your हो voice is बंद little हो low, गई, beta. नहीं तो वो 3-3 4-4. Your voice is little low. Yeah. अब ठीक है. You are not audible. अब ठीक है. अब ठीक है. No, I'm sorry, you are not audible, beta. किसी ने सुना हो तो बोलो. किसी ने सुना मैडम की आवाज? मानसी तुला ऐकायला आलं? हाँ, कार्सिनोसिन दिया था उन्होंने पहले, उसके बाद पोडो दिया था सोशेबिलिटी के, लेकिन अगेन शी स्टार्टेड स्पॉटिंग. सो शी इज आस्किंग अबाउट द पोटेंसी. इज देयर एनीथिंग wrong with the potency? No, podophyllum if she has given, and if the lady is, see, what we have to see is the menses are, first thing that you have to see is whether the menses have become regular first. Second thing, you have to do the ovulation study, whether का ओवम से हो रहा है, ओवम रप्चर हो रहा है. ये 2 चीजों पे आपको स्टडी कर लेना पड़ेगा वापस. Okay, and then you can proceed with the same medicine. Then if the same medicine has made it a ovulatory cycle,
And if it is regulated the menses and the lady is not feeling weak and anemic, your remedy is right. Just give 200 ka one dose and रुक जाओ. Simple. In such case, give 200 one dose and wait. It's not that you give medicine and every time the child comes, the lady will conceive. No. You have to, and in such case, you have to really, because if the lady is bleeding for more time, मैं समझाया था ना कि what is the reason why the lady is bleeding for 15 days and continuously from one menses to another. She is not making herself available for the man. So what is the IPR? What is the panga between herself and the husband? That we have to understand. She is not ready for mating. Okay. The reason is she is not ready for mating. You understood? You are not making yourself available for the man. सबसे main problem किधर आता है? If the lady is bleeding, they cannot have intercourse. So then you have to understand this thing. Okay. So then you need to really take the case properly and ask. You have to convince the patient and tell that this is required for me. And बोल देगा उनको, please don't mind, I need to ask you a question. How is your personal life with your husband? है ना? It's not that कि आपकी दवाई ही सही है. दवाई आपको एकदम totally acceptance नहीं लाएगी. It can be partial minimum. And then if the husband is too irrational and too cruel and all, then try and treat him also, because then उसके जीन्स वैसे आएंगे तो फिर हेल्दी बेबी के चांसेस भी कम हो जाते हैं. डिस्ट्रक्टिव अगर रहता है तो फिर वो बच्चे में भी डिस्ट्रक्शन आ सकता है. तो ऐसे वक्त में ये अच्छा रहता है कि हम लोग हस्बैंड को भी दवाई दें. अल्कोहलिक है तो वी कैन गिव सिफिलिनम, like that. You have to treat the husband also in such cases. And infertility तो अपने पास बहाना भी हो जाता है हस्बैंड को ट्रीटमेंट देने का. Even though he feels that I don't need the medicine, but we have to tell कि बाबा हम चाहते हैं कि सीड भी हेल्दी आए और सॉइल भी हेल्दी रहे. So then you do that. Okay. चलो. हेलो सर. Yes, Mita. पेशेंट ऐसे बोलती है कि बच्चा हो जाएगा तो सास का भी बिहेवियर उसके प्रति अच्छा हो जाएगा, तो क्या ले सकते हैं मतलब? तो देखो ना, मतलब अब कैसा है ना बेटा, किस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब किस तरीके मतलब का बिहेवियर उसके साथ हो रहा है वो भी तो मैटर अभी करता मतलब ताने बहुत मारती है और हर एक बात में कुछ कुछ मिस्टेक्स निकालती है ऐसे. है. तो दिस इज एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज्ड. कार्सिनोसिन. ओके, थैंक यू क्रिटिसिज्म सर. हो रहा है ना, उसको ताने इज क्रिटिसिज्म ना, हाँ. है ना. एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड होपफुल. होपफुल. यस. होप है ना, सिंपल ना. यस यस सर. यस, थैंक यू सर. ओके. चलो मानसी, फिनिश अप बेटा. पेशेंट्स. Yes. Thank you, sir. Thank you so much for the insightful session today. Infertility is one of the difficult topics we deal with in practice. So, with the help of these lectures, we can really be able to take the infertility cases and deal with them. So, thank you so much. And further, Dr. Pranita wants to say something. yeah. प्रणीता आहेस का तू? Hello. बोल. प्रणीता. अच्छा, she's not audible. I All think she right. was talking about infertility course only. So you can contact Dr. Pranita for that. And Dr. Mansi, Dr. Pranita, anybody. Okay, Thank Mansi, you. chalo. Thank you very much. Yes. Bye. Thank you, sir.
हेलो, यू कैन कांटेक्ट डॉक्टर प्रणीता। उनका नंबर फ्लायर पे है। किसी को अगर इनफर्टिलिटी का कोर्स करना है, यू कैन कांटेक्ट हर। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।